بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پرانے وقتوں میں کسی ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ کسی گھر میں کوئی مر جائے تو گھر والے مردے کو چھت سے قبرستان پہنچائیں، جو کوئی حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس ملک میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور جو لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا پھرتا تھا، اور ایک دن بادشاہ کے پاس آیا، اس سے کہا کہ اے بادشاہ، ظلم اور تشدد اور فاقوں سے لوگ یوں ہی تنگ آ چکے ہیں۔ اس پر آپ نے ایک اور احمقانہ فرمان جاری کر دیا۔ مرنے والے کو دفن کرنے کے لیے لوگ ہفتہ بھر 10 دن تک مصیبتیں برداشت کرنے لگے ہیں۔ لوگوں کو اس طرح ستا کر آپ کو کیا مزہ ملتا ہے؟ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کڑک کر کہا، کہتے ہیں کہ سفید ریش بوڑھے دانش مند ہوتے ہیں۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔ یہ بوڑھا طوطا جس کی عقل گھاس چرنے جا چکی ہے مجھے عقل سکھانے آ پہنچا ہے۔ اس کو پکڑ کر ابھی قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور نیا فرمان جاری کیا کہ جن کی داڑھیاں سفید ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی گھر گھر گھوم کر سفید ریش بوڑھوں کو ڈھونڈنے اور ان کو قتل کرنے لگے۔ کچھ بوڑھے اپنی جانیں بچا کر تہہ خانوں میں اور اسی قسم کے خلوت کی جگہوں پر چھپ گئے۔ ایک دن ظالم بادشاہ نے پڑوس کے کسی ملک پر لشکر کشی کرنے کا تہیہ کر لیا اور اس نے حکم دیا کہ جن سپاہیوں کی عمریں 30 سے اوپر نہ ہوں وہ سب میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جن کی عمریں 30 سال سے اوپر جا چکی ہوں ان کو رہنے دیا جائے، کیونکہ ان میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ اس نے آ کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لشکر کشی کی کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ یوں بھی تو کتنے ہی لوگ خام خواہ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ لیکن بادشاہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی بات کا جواب دے، چنانچہ وہ وزیر پر برس پڑا، احمق، تمہیں کیا خاک سمجھتے ہو؟ مجھ سے بحث مت کیا کرو، پھر کبھی ایسا کیا تو تمہارے منہ میں پگھلتا ہوا شیشہ بھروا دوں گا۔ بادشاہ کے فوجیوں میں ذاکر نام کا ایک نوجوان تھا۔ اس کا باپ بوڑھا تھا جس کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی۔ جن دنوں بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ سفید ریش بوڑھوں کو قتل کر دیا جائے، ان دنوں میں ذاکر نے اپنے باپ کو ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ اب جب جنگ پر جانے لگا تو ذاکر اپنے باپ کو الوداع کہنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، اب چلے جاؤ گے تو پھر میں جانے لوٹ کر آؤ گے یا نہیں؟ تمہارے سوا میرا کون ہے جو میری خبر گیری کرے؟ جب تک تم باہر رہو گے میں یہاں اکیلے کیسے زندہ رہوں گا؟ بہتر ہوگا کہ تم بادشاہ سے جا کر کہو اور وہ مجھے مروا ڈالے۔ تم مجھے دفن کر کے پھر چلے جانا، نہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے جانے کا ذاکر کا جی نہیں چاہا۔ اس نے ایک صندوق بنوایا اور بوڑھے کو اس کے اندر چھپا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کو لے کر ایک لمبے سفر پر نکل گیا۔ وہ چلتے چلتے اونچی پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ وہاں ایک بڑا دریا ملا جس کا پانی شور مچاتا اور جھاگ
उड़ाता हुआ बह रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस दरिया के किनारे पड़ाव डाला जाए। चांदनी रात थी। बादशाह किनारे पर बैठा दरिया की तरफ साफ शफाफ पानी को देख रहा था कि अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। दरिया की तह में दो हीरे कुछ इस तरह चमक रहे थे कि जिस तरह अंधेरी रात में ताबनाक तारे चमकते हैं। बादशाह ने फौरन एक फौजी को बुलाकर हुक्म दिया कि दरिया में गोता लगाकर इन हीरों को निकाल लाओ। उस फौजी ने दरिया में गोता लगाया, फिर बाहर आना उसके नसीब में ना हुआ। बादशाह ने एक और फौजी को पानी में उतारा, वो भी दरिया की गहराइयों में खोकर रह गया। फिर तीसरे फौजी को दरिया में उतारा गया। इस तरह का वो कई हशर हुआ, कई फौजियों का हशर हुआ। उस तरह कितने ही फौजियों को पानी में निगल लिया। जाकर की बारी आने वाली थी तो वो दौड़कर अपने बाप के पास गया और रोते हुए उससे कहा, अब्बा जान अलविदा, मुझसे जो खता हुई हो उसको माफ़ कर दीजिएगा। क्या बात है बेटे? बूढ़े ने परेशान होकर पूछा। जाकर ने सारा हाल उसको सुना दिया। बूढ़ा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने बेटे से पूछा, बताओ तो सही, दरिया के किनारे कोई दरख्त है? जी हाँ अब्बा जान, दरख्त है, जाकर ने जवाब दिया। तब तो हीरे दरिया के अंदर नहीं। बूढ़े ने कहा, वो दरख्त के ऊपर है, पानी में बस उसका अकस पड़ रहा है। बेटा तुम इस जगह को अच्छी तरह देखभाल कर लो। जब तुम्हारी बारी आए तो तुम दौड़कर दरख्त के ऊपर चढ़ जाना। हीरे चिड़ियों के किसी घोंसले में पड़े होंगे, तुम उनको उठाकर अपनी कमर के पटके में रख लेना, फिर पानी में कूद पड़ना। जाकर अपने बाप के पास से चलकर किनारे पर गया। बादशाह ने उसको पानी में कूदने की हदायत की। जाकर दौड़ता हुआ दरख्त के पास आया और फिर उसके ऊपर चढ़ने लगा। ये देखकर बादशाह ने कड़क कर पूछा कि अबे तुम दरख्त पर क्यों चढ़ रहे हो? जाकर ने जवाब दिया, हजूर मैं दरख्त पर से पानी में कूदना चाहता हूँ, तब मैं हीरों को ज़रूर निकाल लाऊंगा। ऊपर चढ़कर जाकर ने देखा कि हीरे एक घोंसले के अंदर पड़े चांदनी की तरह जगमगा रहे थे। उसने फौरन उनको उठाकर अपनी कमर के पटके में रख लिया और छलांग मारकर पानी के अंदर गायब हो गया। इससे पहले जिस वक्त जाकर अपने बाप के पास गया हुआ था, बादशाह ने ऐलान किया था कि जो कोई पानी से खाली हाथ निकल आएगा उसकी खाल उतार दी जाएगी। लेकिन जाकर पानी के किनारे पर निकल आया और उसने हीरे बादशाह की तरफ बढ़ा दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने जाकर को शाबाश देकर अपने हाथ से उसके कंधे पर थपथपाया। सुबह को बादशाह की फौज दरिया के किनारे किनारे आगे चल पड़ी और चलते जा रहे थे कि एक जगह चूंटियों का एक फौज सी नजर आई। बादशाह ने अपने लोगों से पूछा, यहाँ इतनी चूंटियाँ कहाँ से आ गई? ये आखिर यहाँ भाग दौड़ क्यों कर रही हैं? कोई इसका सवाल का जवाब ना दे सका तो बादशाह ने ऐलान किया, मैं रोज़ 2 आदमियों से यही सवाल करूँगा, जिसका जवाब मुझे पसंद आया उसकी तारीफ़ करूँगा और जिसका जवाब पसंद ना आया उसको कत्ल करवा दूँगा। बादशाह का हुक्म सुनकर जाकर फिर दौड़कर अपने बाप के पास गया और सारा हाल उसको सुना दिया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, तुम बादशाह के पास जाकर उससे कहना कि मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर तुम उससे कहना कि दरिया के तह में एक घड़ा पड़ा है जिसके अंदर पहले तेल था। अगर
बादशाह ने हुक्म दिया कि वो घड़ा निकाल लाओ तो तुम कहना कि अच्छी बात है। फिर किसी दरख्त पर चढ़ जाना और वहाँ से बादशाह को तीर मारना। तीर खूब अच्छी तरह निशाना साध कर चलाना ताकि बादशाह के ठीक मुंह में लगे और वो वहीं तड़प कर मर जाए। एक मालूम की वजह से कितने ही आदमी अपनी जानें गंवा रहे हैं। जाकर अपने बाप के पास से उठकर सीधा बादशाह के पास पहुंचा और उससे कहा, बादशाह सलामत, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। यहाँ दरिया की तह में कोई घड़ा पड़ा हुआ है जिसमें पहले तेल था। उसकी बू पाकर यहाँ चूंटियाँ घूम फिर रही हैं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने कड़क कर कहा, अहमक, घड़ा दरिया की तह में पड़ा है और चूंटियाँ यहाँ ऊपर दौड़ भाग कर रही हैं। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? ये कहकर उसने जल्लाद को पुकारा, लेकिन जल्लाद के आने से पहले ही जाकर ने बादशाह से कहा कि आलम पनाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस घड़े को निकाल लाऊं। ठीक है, निकाल लाओ, बादशाह ने कहा। जाकर दौड़कर एक दरख्त पर चढ़ गया और वो दरख्त के एक शाख पर आराम से बैठकर और वहाँ से निशाना साध कर एक तीर जो मारा, जो वो आकर बादशाह के मुंह में लगा और उसके कान की तीर चीरता हुआ निकल गया। बादशाह गिर पड़ा और जान भाग हो गया। जाकर दरख्त से नीचे उतरा तो उसके करीबी साथी दौड़कर उसके पास आए और उसकी बगल गिर होकर इंतहाई खुशी से कहने लगे कि शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, दुनिया को इस बलाए बेदर्द मान से छुटकारा दिला दिया। जाकर ने जवाब दिया, ये काम मैंने नहीं, मेरे बूढ़े बाप ने किया है। सब फौजी इकट्ठे होकर जाकर के बूढ़े बाप के पास आए। उन्होंने जालिम बादशाह से छुटकारा दिलाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उस सफ़ेद रीश दानिशमंद बूढ़े को अपना नया बादशाह चुन लिया। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।